مجوزہ اے پی سی پر مشاورت، بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے، پی پی چیئرمین اور شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ نون لیگی وفد آج بلاول سے ملاقات کرے گا۔ پیپلز پارٹی بجلی مانگنے سڑکوں پر آ گئی، لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف کراچی میں احتجاج، خواتین کی بڑی تعداد بھی مظاہرے میں شریک، کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی۔ باہر سے آئے مہمان کیسے بن گئے حکمران، 5 خصوصی معاونین کی دوہری شہریت کا شور، اپوزیشن کا استعفوں پر زور، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا شدید رد عمل، معاملہ عمران خان کا نیا یو ٹرن، سلیکٹڈ وزیر اعظم بے نقاب ہو گئے، شہری رحمان کی تنقید، خان صاحب کہتے تھے دوہری شہریت والے ملکی فیصلے نہیں کر سکتے، آج انہیں کابینہ میں کیوں بٹھا رکھا ہے، مریم اورنگزیب کا سوال۔ معاون خصوصی پیٹرولیم کی پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی اداروں میں سرمایہ کاری، پی ایس او میں بھی حصہ، ندیم بابر نے سوئی ناردرن، صدرن اور پی پی ایل کے شیئرز بھی خرید رکھے ہیں، تفصیلات دنیا نیوز پر۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے بعد بڑا ایکشن، اسد کھوکھر کی پنجاب کابینہ سے چھٹی، چند ماہ پہلے جنگلی حیات اور ماہی پروری کی وزارت دی گئی تھی، ذاتی وجوہات کی بنا پر فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، اسد کھوکھر کا موقف۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج، پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، 24 گھنٹے کے دوران 46 اموات، ملک بھر میں 2,63,496 مریض، سندھ میں 1,12,118، پنجاب میں 89,793 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 31,890 اور بلوچستان میں 11,424 کیس۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، وقت کم، مقابلہ سخت، جانوروں کی خریداری زور پکڑ گئی، منڈیوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی، کراچی میں چھتوں پر پلے جانوروں کو نیچے اتارنے کا سلسلہ شروع۔ لاہور میں آندھی کے بعد بادل برس پڑے، اسلام آباد، گجرانوالہ میں بھی موسلادھار بارش، اٹک، فیصل آباد، گوجرا اور قصور میں چھتیں گرنے کے واقعات، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ لاہور میں آندھی کے باعث مویشی منڈیوں کا نظام درہم برہم، شامیانے گر گئے، لائٹ ٹاور زمیں بوس، بیوپاری پریشان، بوندے گرتے ہی لیسکو کا نظام بھی فیل، لاہور میں درجنوں فیڈر ٹرپ، اکثر علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ جیکب آباد کے نواحی گاؤں میں 2 بہنوں سمیت 4 بچے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، ایک کی حالت نازک، افسوسناک واقعے پر گھروں میں کہرام۔ پولیو سے پاک پاکستان کا مشن، موذی مرض کے خاتمے کی مہم کا آج سے دوبارہ آغاز، 8 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، پہلے مرحلے میں فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان، کراچی اور کوئٹہ کے کچھ علاقے شامل۔ دورہ انگلینڈ کی تیاریاں کرتے خوشدل خان زخمی، قومی کرکٹر کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا فریکچر، 3 ہفتے کے لیے کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے، عابد علی بھی انفٹ۔ ان میں لگی آگ کا نوٹس لے لیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو آگ پر جلد قابو پانے کی ہدایت کی ہے، فیکٹری کے مزدوروں کی زندگیاں بچائی جائیں، یہ بھی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مکمل انکوائری رپورٹ دینے کی بھی کمشنر کراچی کو ہدایت کر دی ہے۔ تو لانڈھی پروسیسنگ زون میں اس وقت لگی آگ بے قابو ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال کہیے گا، یقینی طور پر یہاں پر آپریشن جاری ہے اور 6 گھنٹے سے زائد کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے، تیسرے درجے کی آگ، صورتحال کیا ہے، کتنی فیکٹریز اس کی لپیٹ میں ہیں اور خدا نخواستہ کسی جانی نقصان کی تو کوئی اطلاع نہیں؟ جی بالکل، ابتدائی طور پر 6 بجے کے قریب جو ہے وہ گتے کی فیکٹری میں آگ لگی تھی شارٹ سرکٹ کے باعث، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اطراف میں موجود 2 مزید فیکٹری ہیں، ایک کپڑے کی فیکٹری اور ایک پلاسٹک کی فیکٹری،
उन दोनों को अपनी लपेट में लिया है और जिसके बाद आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार की है। फायर ब्रिगेड की इब्तदाई तौर पर 3 से मुतालिक ऑर्डिनेंस का ये मामला है। कुलभूषण की सजा के खिलाफ अपील दायर करने का कानूनी वक्त गुजर गया है। भारत की जानिब से अपील दायर ना की जा सकी। जराए का ऐसा बताना है अपील दायर करने के कानूनी वक्त में पार्लियामेंट से तौसी का इम्कान है। कुलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस के बारे में वजारत कानून ये तजवीज़ दे चुका है कि इसे कौमी असम्बली इजलास में पेश किया जाए। अलबत्ता जो मुकर्ररा वक्त था ऑर्डिनेंस का 60 दिनों में भारत की जानिब से कोई अपील दायर नहीं की गई। अब अपील दायर करने के कानूनी वक्त में पार्लियामेंट से तौसी का इम्कान है, लेकिन बहरहाल साथ ही साथ इस मामले पर अपोजिशन की तरफ से सवालात भी हो रहे हैं, लेकिन वजारत कानून की तजवीज़ अपनी जगह मौजूद है। नुमाइंदा खुसूसी अदील वड़ाइच हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अदील, ऑर्डिनेंस अपना वक्त पूरा कर चुका है, अब पार्लियामेंट को जाना है ये मामला, क्या खबरें हैं इस्लामाबाद से, कब तक ये मूव कर दिया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस पर? जी, बुनियादी तौर पे तो कोई भी जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी जिंदगी 4 महीने तक होती है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के अंदर ये क्लॉज रखी गई थी कि जो भारतीय हाजिर सर्विस रॉ एजेंट है, दहशतगर्द है, जासूस है, इसको जो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में अपील का हक दिया गया था, उसमें 2 महीने मेंशन किए गए थे। क्योंकि 20 मई को ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हुआ था, नाफिजुल अमल हुआ था, और उसके बाद आज रात 12 बजे ये 2 महीने की मुद्दत यानी 60 रोज की मुद्दत जो है ये पूरी हो गई है। इसके बाद जरा ये बताते हैं कि वजारत कानून ने ये तजवीज़ दे रखी है कि इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाए, क्योंकि जब पार्लियामेंट के इजलास चल रहे होते हैं तो उस वक्त कोई ऑर्डिनेंस जारी भी नहीं हो सकता, तो इसमें एक्सटेंशन भी कानूनी तौर पे अब ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकती, तो इस मामले को पार्लियामेंट ही ले जाना पड़ेगा। इस बात का इम्कान है कि ये आज या कल कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश कर दिया जाएगा और सियासी जमातों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी, और ये एक्ट की सूरत में फिर ये जब पास हो जाएगा उसके बाद कुलभूषण यादव को जो अपील का हक है फिर वो उस एक्ट की रोशनी में मिलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिल। खबर यह भी है कि मुल्क भर में पोलियो मुहिम आज से दोबारा शुरू होगी। मखसूस अजला में 5 साल से कम उम्र के 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना के बायस 4 माह से ये मुहिम मुअत्तल थी। माह से मुअत्तल पोलियो मुहिम का आज से मुल्क के मखसूस अजला में आगाज। पहले मरहले में फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान, कराची और क्वेटा के कुछ इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम ऐसे इलाकों में चलाई जाएगी जहां वायरस की मौजूदगी ज्यादा है। तर्जमान इंसदाद पोलियो के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र पोलियो मुहिम बुरी तरह मुतासर हुई, ताहम अब खसूसी इकदाम और SOPs का ख्याल रखते हुए दोबारा से मुहिम को चलाया जा रहा है। सूबों के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तरतीब दी गई। तर्जमान का कहना है कि जून में टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप से बाकायदा मंजूरी ली गई। इस साल अब तक पोलियो के 58 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 21 खैबर पख्तूनख्वा, 20 सिंध, 14 बलोचिस्तान और 3 पंजाब से सामने आए। आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन ने दोहरी शहरियत वाले मुशीरों और मुआवनी ने खुसूसी की दोहरी शहरियत पर कई सवालात उठाती है। नफीसा शाही कहती हैं कि सिलेक्टेड वजीर आजम अब बेनकाब हो गए हैं। जबकि सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने नया यू टर्न ले लिया। मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की शहरियत वाले मुशीरों और वजीरों से इस्तीफों का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म के मुशीरों और मुआवनी ने खुसूसी की दोहरी शहरियत, अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल, कई सवालात उठा दिए, बरतरफी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने मामले को इंतहाई हसास और वजीर आजम का नया यू टर्न करार दे दिया। नफीसा शाह कहती हैं कि अमरीकी शहरी मुईद यूसुफ को कौमी सलामती समेत हसास मामला तक रसाई देना इंतहाई तशवीशनाक है। नदीम बाबर के पेट्रोलियम कंपनीज में शेयर्स मफादात का तसादुम है। सिलेक्टेड वजीर आजम बेनकाब हो गए। शेरी रहमान ने वजीर आजम इमरान खान को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इमरान खान माजी में दोहरी शहरियत के हामिल काबीना अराकीन की सख्त मुखालफत करते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दोहरी शहरियत के लोग अब नया पाकिस्तान बना रहे हैं? अगर वजीर आजम को मालूम नहीं था तो ये मजीद तशवीश की बात है। पार्लियामेंटेरियन जिस मुल्क का दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो ये हसास मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए एडवाइजर्स कैसे
दोहरी शहरियत रखे हुए हैं। आईनी फोरम्स में ये बैठते हैं, वहाँ अहम और हसास फैसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को बजाय इसके कि इतनी कंट्रोवर्सी को में डालें पूरी अपनी हुकूमत को, अपने इन मुशीरों को कहना चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं फिलफौर। नवाज लीग ने गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों वजीरों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान साहब, आपने कहा था ये नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत वाले मुस्तकबिल के फैसले भी करें। उन्होंने याद दिलाया कि इमरान खान तो कहते थे कि जिसके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो उसे पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए। मोईद यूसुफ और शहबाज गिल ने कहा है कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं, जबकि जुल्फी बुखारी कहते हैं कि नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा इकामा होल्डर्स थे। इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। नदीम अफजल चंद बोले, उनके पास शहरियत नहीं, PR कार्ड है। दोहरी शहरियत और गैर मुल्की कीमती जायदादों का मामला वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी और मुशीर वजाहत देने सामने आ गए। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत से इनकार। वजाहती बयान में कहा कि वो पाकिस्तान में जिम्मेदारियां संभालने के बाद अमरीका गए ही नहीं। शहरियत से मुताल्लिक गलत फहमी फैलाने से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क उनकी मिल्कियत अरबों या लाखों की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। जुल्फी बुखारी अपोजिशन पर बरस पड़े और इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ समेत कई लीगी रहनुमा इकामा होल्डर हैं। सियासी दरोगोई की भी कोई हद होती है। एहसन इकबाल दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय गिरेबान में झांकें। शहबाज गिल ने भी गैर मुल्की शहरियत से इनकार किया। उनका कहना था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके पास सिर्फ सब्ज पासपोर्ट है, जिसे कभी नहीं छुपाया। नदीम अफजल चंद ने वजाहत की कि शहरियत और PR कार्ड में फर्क होता है। अगर तस्दीक के लिए उनसे राबता कर लिया जाता तो गलत खबर नशर करने की जरूरत पेश न आती। साब काबीना से एक और वजीर अलग, मलिक असद खोखर वजारत से मुस्ताफी हो गए। वही कहते हैं कि जाती वजूहात की बिना पर ये इस्तीफा दिया, जबकि जरा ये कहते हैं कि बाज रिपोर्ट्स के बाद मलिक असद खोखर से इस्तीफा लिया गया। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के बाद सियासी और इंतजामी तब्दीलियां जारी। गुज़श्ता रोज 2 ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से हटाया गया। अब पंजाब के वजीर तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात व फिशरीज मलिक असद खोखर पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं रहे। मलिक असद खोखर पंजाब काबीना से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफे के मतन में कहा